trying to. Hello everyone. Good evening. Wishing you a very happy new year. Today we will be learning a very beautiful article. Hello Dipti ma'am, hello Supriya ma'am, hello Dhriti, hello Shweta ma'am. Happy New Year to everyone. So without wasting time, I think I should start with the article. People will join. Am I clearly visible and audible? Can anyone give a thumbs up if everything is audible and visible? Okay. So today we will be doing this Nazar Vattu, Nimu Mirchi Nazar Vattu. This can be done in two ways. This is a key ring, and another way is I have taken this thing. So we can attach in this, and we can hang it on our bags, handbags. तो ये की रिंग की शेप में बनाया है मैंने, और ये मैं हैंडबैग्स के लिए बनाऊंगी. So we'll be needing the hero of our product today is the hero of the article is molded. Hello Gayatri ma'am. Hero of our product today is molded, and we just need molded only. And acrylic colors. Acrylic colors mean we'll be needing just yellow, the lemon yellow, and light green, which is available in the kit. Hello Rajni ma'am. Hello Nisha ma'am. We will not be needing a lot of products, only 2-3 products, and glass colors are completely optional. To save this, I have used glass colors. Let us start. Glass colors हमारे बिल्कुल end में use होंगे, and we will prepare the base for the Krishna article.
This is the Krishna article. This I have done on canvas sheet. बट कल जो हम बनाएंगे वो मैं उस पे कार्डबोर्ड पे बना के उसके ऊपर टेक्सचर दूंगी टिश्यू पेपर का, क्योंकि अगर मैंने किसी भी क्लास में टिश्यू पेपर का टेक्सचर यूज नहीं करा है, सब कैनवसेस पे लिए हैं, तो वो टिश्यू पेपर का टेक्सचर आज हम बना लेंगे और उसके बाद कल हम इसको पेंट करेंगे. दिल्ली में तो केसेस दोबारा से बहुत बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली इज मूविंग टुवर्ड्स लॉकडाउन एंड टुमारो फ्रॉम टुडे नाइट ओनली till Monday morning it is curfew in Delhi. I think everyone must be knowing then this is that this is the raisin and this is the hardna, and we have to mix it in equal proportion. तो we'll be creating miniature, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. Hello Anu ma'am. We are having workshop after so long. I was really missing you all guys. और अभी तो शायद दोबारा से लॉकडाउन की वजह से कॉलेज की क्लासेस भी ऑनलाइन हो जाएंगी. I have taken the raisin and the hardna in equal proportions. We'll be needing some talcum powder. Hello Krishna ma'am. It is completely your choice कि आपको इसको कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है. मैं इसको इससे भी छोटा मिनिएचर में बनाऊंगी, और ये मैंने अपने डोर के लिए रखा हुआ है. ये मैंने अपने डोर पे हैंग किया हुआ है मेन गेट पे. विंटर्स के अंदर मोल्डेड टेक्स टाइम टू ड्राई, अदरवाइज तो 35 to 40 minutes is the usual time in which our molded dries up completely, but winters में it takes around 1.5 hours. If it is pasting in your hand, just take take talcum powder. We have to mix the molded until it is of the same color. और जो marbling effect है, it is completely gone. See, it is completely mixed. We have not got the marbling effect now. First, you need to decide what amount you have to take for the nimbu. This I am taking the ball. अगर आपको इसमें मोल्डेड का ऐसा लगता है कि मोल्डेड आपको सेविंग करनी है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक फॉइल पेपर का भी बॉल बना सकते हो और इसके अंदर फिक्स कर सकते हो. बट उसमें इशू ये होगा कि जब आप इसको घुसाएंगे इसको,
पियर्स करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है और थोड़ा सा शेप इधर उधर हो जाता है। ये भी मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। Now it is almost the same size. अब आपको उसको बिल्कुल अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रोल करना है ताकि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स या कुछ भी हो तो वो खत्म हो जाए। एंड कीपिंग इट असाइड, मैंने अभी सिंपली स्फीयर बना के रखा है। नाउ जनरली इसके अंदर 7 मिर्ची होती है जो नजर बट्टू बनता है। तो आई एम टेकिंग 7 balls, 1 2 3 4 5 6। एक और के लिए मैं और ले लेती हूँ प्ले, अभी बनाते हैं उसको। अब आई थिंक ज़्यादा क्लियर है। अभी हमारा नींबू क्रिएट हो गया है, इसको हम अभी फिलहाल साइडवेज रेस्ट के लिए रख रहे हैं। और मिर्ची क्रिएट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी रोल इट इनटू अ बॉल, टेक सम टेल्कम पाउडर और आप एक साइड से इसको शेप दे दो, टीयर ड्रॉप शेप। एंड यू हैव टू टेक केयर कि आपके इसके ऊपर ठीक से बैठे। यू हैव टू टेक केयर, ये नहीं होना चाहिए कि ये इससे बड़ा हो जाए। द मिर्ची शुड बी ऑफ द साइज ऑफ द नींबू व्हाट यू आर टेकिंग। अब इसके अंदर मिर्ची 2 टाइप से बनती है। एक आपने सिंपल एक ऐसे बनाई है जो मैंने अपने आर्टिकल में बनाई है, एंड सेकेंड वन जो मिर्ची बनती है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर छोटी टिप लगाई है। टिप लगाने के लिए व्हाट वी डू इज वी टेक अ बॉल और हम उसको फिर से टीयर ड्रॉप में हमने बनाया, एंड वी टेक अ ब्रश और हमने इसको यहां से इसको प्रेस कर दिया अंदर की तरफ, एंड वी क्रिएटेड दिस होल। थोड़ा सा और बड़ा होल होगा और हमने इसको मिर्च को इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा और होगा। हमने इसको ऐसे मिर्च के ऊपर फिट कर दिया। अब इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट होगा ये, क्योंकि मेरा टेल्कम पाउडर लगा हुआ है। और आप चाहो तो इसकी लीव्स भी यहाँ से कट कर सकते हो, जो इसके अंदर पेटल्स होती हैं एक तरीके से, जस्ट कट इट। बेटर अगर आप सिजर से कट करो। मैं एक मिनट सिजर लेकर आता हूँ, आई फॉरगॉट टू टेक द सिजर्स। ये हमने बॉल बनाई, मैं प्लेन लगाऊंगी। आपके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको अगर इफ यू वांट टू डू लाइक दिस यू कैन। हमने इसका टीयर ड्रॉप किया, टीयर ड्रॉप लेके अपना बैक ऑफ द ब्रश हमने इसके अंदर इंसर्ट किया। टेल्कम पाउडर जरूर लगा लेना। हमने एक होल बनाया ऐसे,
और उसको हमने ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद ही खुल गया। आई होप आई एम क्लियर। और फिर आप इसको ऐसे पॉइंट में कर दो। आप इसको पिंच करके आपको एक जैसे मिर्च के ऊपर एक छोटा सा होता है, आपको बस पिंच करना है इसको, और फेविक्विक से आपको इसको ऐसे पेस्ट कर देना है इसमें। मैं नहीं पेस्ट कर रही हूँ, ये मुझे ये बनानी नहीं है ऐसे। तो ये आपका नॉर्मल जो मिर्च होती है वो तैयार हो गई है। आई होप आई एम क्लियर। इज इट विजिबल? इज इट क्लियरली विजिबल? बट मैं इसको नहीं ले रही हूँ, मैं इसको सिंपल बनाऊंगी। दोबारा से टीयर ड्रॉप शेप में, सिर्फ टीयर ड्रॉप शेप में करके हमें इसको छोड़ देना। जब हम इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे अपना, तो हम इसके सारे पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। नीचे से थोड़ी सी पतली और ऊपर से थोड़ी सी मोटी। वन टू थ्री। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट आर्टिकल। मैंने इसीलिए इजी चूज किया ताकि हम कल वाली वर्कशॉप का भी थोड़ा सा काम आज कर सकें। And this is yet a easy and useful article. I hope everyone is getting how to create the mirchis, the chilies. Just we have to create the teardrop shape, and we have to extend the ends. So we have created 7. What we need to do is, अगर आप नींबू में देखोगे तो थोड़ा सा टेक्सचर होता है। मैम इसके अंदर अभी हम गायत्री मैम वी विल पियर्स एंड वी विल कलर साइड बाय साइड, बट इसका अटैचमेंट तभी होगा जब ये सूख जाएगा कंप्लीटली। आई एम टेकिंग दिस टिश्यू पेपर, और जो हमारा ये नींबू हमने बनाया है उसको मैं हल्के हाथ से इसके अंदर रोल कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से आपको इसके अंदर रोल करना है। बिल्कुल भी अपने हैंड्स हेवी मत रखिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसके अंदर रोल करना है। एंड इज इट विजिबल? जो टिश्यू पेपर का टेक्सचर है वो हल्का सा इसके ऊपर आ गया है, क्योंकि अगर आप नींबू में देखोगे तो नींबू में अपने आप में लेमन पे एक टेक्सचर होता है, तो वी हैव टू क्रिएट दैट टेक्सचर।
अभी हम इसको दोबारा से जब पोर इसके अंदर वो करेंगे पियर्स, तो भी हमें टेक्सचर देना पड़ेगा. And now I have taken the साथी stick. You can take any wire or anything of your choice. जितना आपको इसके अंदर मोटे होल्स रखने हैं आप उतना इसको ले सकते हो. अब there are two ways. या तो हम पहले जैसे इस आर्टिकल के अंदर है, पहले मैंने इसके अंदर नींबू डाला है एंड देन मैंने इसके अंदर मिर्ची डाली है. और वी कैन डू, मैंने मार्केट में कई बार देखा है कि 3 मिर्च नीचे होती हैं, देन देयर इज अ लेमन एंड देन देयर आर 4 चिलीज. तो यू कैन डू ईदर वेज. मुझे थोड़ा सा ये वाला बेटर ऑप्शन लगता है तो मैंने इसलिए ऐसे किया है. यू कैन डू ईदर वेज. आप नीचे चिलीज भी ले सकते हो, फिर लेमन और फिर दोबारा चिलीज भी ले सकते हो, बट मैं पहले लेमन ही ले रही हूँ. अब जो भी स्टिक या वायर जो भी आप लोगे उसको अच्छी तरह आपको टेलकम में यू हैव टू डिप इट इन द टेलकम और आपको सेंटर से इसको ऐसे पियर्स करते हुए चलना है और बहुत हल्के हाथ से आपको इसको पियर्स करना है. इफ यू थिंक आपका पाउडर थोड़ा कम है तो डिप इट अगेन, क्योंकि एक वो होल हो चुका है. एक बहुत आराम से होल हो गया इसके अंदर. अभी हमारा ऐसे आएगा, नीचे नींबू और ऊपर टेलकम, ऊपर मिर्ची. अब आई एम टेकिंग द फैटेस्ट चिली और उसको भी मैं ऐसे ही रोल करते हुए मैं इसमें से निकाल दूंगी इसको. अब लेमन के सपोर्ट से मैं इसको नीचे करूंगी. अगर आप लेमन का सपोर्ट नहीं लोगे तो ये ब्रेक हो जाएगी. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो अपना लेमन थोड़ा ऊपर रखो क्योंकि दिस इज क्वाइट डेलिकेट. वैसे ये फ्रेश मोल्डेड है तो वी डोंट नीड दिस फैब्रिक ग्लू, बट अगर आपको लगता है कि आपका मोल्डेड थोड़ा पुराना है या कुछ इस टाइप से है तो यू कैन यूज फैब्रिक ग्लू आल्सो, बट मेरी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली पेस्ट रहेगी. अब कहीं पर आप इसको थोड़ा सा जैसे मिर्च हमने यहाँ पे निकाल दी, ऐसे भी कर सकते हो. एकदम से जरूरी नहीं है कि सारी एक ही डायरेक्शन में हो. अब मैं एक इसका जो फेस है वो इस तरफ कर रही हूँ और इसका जो ये है वो यहाँ ला रही हूँ. We are done with 5 chilies. Hello Mona ma'am, Happy New Year. Again I am dipping it in talcum powder और मैंने दोबारा से इसका फेस चेंज कर दिया है. मेक श्योर कि आपका जो स्टिक है वो कम्प्लीटली मूवेबल हो, नहीं तो ये स्टिक के साथ जब ड्राई होगा तो ये पेस्ट हो जाएगी और ये निकलेगी नहीं. तो आपको ये खास ध्यान देना है कि आपको अपने स्टिक पे दोबारा टेलकम पाउडर यू हैव टू पेस्ट इट. अब आई एम जस्ट पुशिंग इट ताकि एक दूसरे से थोड़ा सा चिपक जाए, क्योंकि दिस इज अ फ्रेश मोल्डेड तो वो ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा. अब जो हमारा थोड़ा सा लेमन का शेप है जो आपको लगता है कि खराब हो गया है तो उसको हम ठीक करेंगे और दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा टिश्यू पेपर का इफेक्ट देंगे लेमन पे.
ये जब हम कलर करेंगे तो ये इफेक्ट दिखेगा फिर। देखो ये हल्का सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि ब्रेक होगा, तो मैं इसको दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखो दीज टू चिलीज मैं इसको दोबारा बना रही हूँ। थैंक यू अलका मैम। दोबारा से इसको रोल करके we'll give a teardrop shape। टेल्कम लगा के I will pierce it। थोड़ा सा इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। थैंक यू मैम। यू नोटिस माय ब्रश कवर, अभी इसके ऊपर एक आर्ट भी होने वाला है। उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जो पहले वाला था ना, इसमें सारे ब्रशेस विजिबल हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं हल्का सा इसको एक हैंड दे रही हूँ जिसके अंदर ये एक दूसरे से थोड़ा सा चिपक जाए। वैसे तो इसकी नीड नहीं है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं एक हल्की सी पेस्टिंग दे रही हूँ इसके ऊपर। आई एम जस्ट कीपिंग इट। नो मैम, वैसे तो इट इज वेरी इजी, बन सकता है, बट मैंने इसको थोड़ा फोम वगैरह लगाकर बनवाया है, तो मैंने इसको टेलर से स्टिच कराया। आई एम नॉट गुड एट स्टिचिंग, मुझे स्टिचिंग नहीं आती। आई शो यू। ये मतलब सीरियसली काफी अच्छा है। इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल भी लेने वाली हूँ इसके बैक साइड पर। बट इसके अंदर मैंने 3 पॉकेट्स बनवा कर ना, ये मेरे सारे बिल्कुल फ्रेश ब्रशेज हैं, ये बिल्कुल थोड़े बेकार टाइप्स ब्रशेज हैं और ये थोड़े ब्रॉड ब्रशेज हैं, तो इसमें थोड़ा कैटेगरी वाइज भी हो गया, तो ना पाउच से इट इज बेटर। Now first of all we taking white color। जब भी आप क्ले मोल्डेड यूज करो तो मतलब इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट मुझे लगता है कि व्हाइट कलर गिव्स अ वेरी गुड शीन ऑन ए प्रोडक्ट और आपको डबल कोट से कुछ नहीं करना पड़ता। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज व्हाइट कलर ऑन मोल्डेड फर्स्ट। मेक श्योर आपके जो इनर जो होते हैं वो भी रह ना जाए। एंड डोंट यूज एक्सेस कलर,
बहुत एक्सेस कलर यूज मत करना। क्योंकि हमें इसके ऊपर एक और भी have to give a coating of another color, तो डोंट यूज एक्सेस कलर, बस एक सिंगल कोट दे दो वाइट का। Now we'll be needing some, this is light green, color number 12, which is available in our sunflower kit, and this is lemon yellow. First I am doing the lemon yellow because it is a light color. You should always go for the light color first. My lemon color has some colors in it, so it is not preferred to use this color. I'll go with a fresh one. Take this lemon yellow and carefully just do it on the needle only. If you are able to see जो हमने टिश्यू पेपर से टेक्सचर लिया था वो नजर आ रहा है इसके ऊपर। Thank you, Gayatri ma'am. I'm planning for some more beautiful articles in the January workshop. Are you guys interested in texture paintings? No, creating different kind of textures. Because अगर आप कोई बड़ी पेंटिंग बनाओगे तो you need to give textures. खाली plain उससे काम नहीं होता है. So I was planning to for the next workshop कि मैं different type of textures बताऊंगा आपको कि कैसे बनाया जाते हैं. Yes, I yet not finalized it. Once it dries तो आप इसको एक कोट और दे देना इसके ऊपर। जो थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं वो नजर नहीं आएंगे।
मेक श्योर ये लेमन पे ना जाए, थोड़ा सा केयरफुली करना। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि जब आपका ड्राई हो जाए तो उसके बाद करना, ताकि आप उसको होल्ड कर सको। आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट बिकॉज माइन इज येट नॉट ड्राइड। This is a very cute gift to, gift it to someone. Guys, you can pour some love by giving the likes and love. It actually motivates me. I finished with this. Now I'm keeping this aside. I hope everyone has seen. I'm keeping it aside. To dry. और अभी जब 10 मिनट में जब इसका ये ड्राई हो जाएगा एक्रेलिक कलर, तो देन वी विल मूव अहेड विद दिस आर्टिकल। मीनवाइल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट आर्टिकल। कल वाला उसका बेस बनाते हैं। आई डोंट नीड द टेलिकॉम पाउडर। एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ जरा। Stuff I don't need. Now our next article is 3D Krishna ji. This is the next article. This is 3D Krishna ji, which we are going to do tomorrow. But we are create this I have done on canvas. मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी बताई थी ये बात कि this I have done on canvas, और इसके अंदर मैंने इनका जो मुकुट एंड ज्वेलरी और ये जो ये धागा पहनते हैं that I have given in from molded. तो अब this is a square base. तो मुझे ऐसा लगा कि इसको एक मतलब बनाने के बाद आई रियलाइज कि ये एक बहुत अच्छा प्लेट डेकोर में भी यूज हो सकता था, और हम इसको टेबल टॉप से कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक सर्कुलर लिया है जिसके ऊपर मैं इसको बनाऊंगी अब। तो सर्कल के ऊपर सबसे पहले मैं एक टेक्सचर इफेक्ट दूंगी टिश्यू पेपर का। तो टिश्यू पेपर का जब मैं इफेक्ट दूंगी तो इट विल टेक अराउंड 4-5 आवर्स टू ड्राई। तो इसका इफेक्ट हम इसका टिश्यू पेपर का जो है वो आप आज बना के रखेंगे ताकि कल हम अपनी क्लास में इसको यूज कर सकें। For the effect, what I am going to do is
Take some Fevicol. This is Fevicol MR. You can take any Fevicol. It is completely optional. कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर. And approximately, if it is 1 spoon of Fevicol, then you have to take 2 to 3 spoons of water. Any doubts till here? Anyone? If anyone is having doubts? I am pouring water in the Fevicol. See? And with a not so good brush, don't take a new brush for this, take an old one. And just mix the Fevicol. It is preferred that you should use this plastic disposable containers ताकि आप साथ साथ इसको थ्रो कर दो. This is completely liquidy. See, you can see the consistency. It is completely liquid. अभी हम चाहे तो थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स पानी के और डाल सकते हैं. Because Fevicol will do its work. Now I am taking a tissue paper. I'm starting from here. I'm just pouring this mixture. सबसे पहले तो एक टेक्सचर तो क्रिएट होगा ही, उसके बाद इसकी जो हमारा आर्टिकल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा. By putting this tissue paper, our article will become strong also. मैं कंप्लीट लेयर ऐसे लगा रही हूँ उसको. I'm tearing it. Make sure कि आपके जो ends है, edges है, वो totally completely covered हो. और इसके ऊपर थोड़ा सा जो नेक्स्ट लेयर आएगी उसको थोड़ा सा हम ओवरलैपिंग रखेंगे. टीयरिंग इट फ्रॉम हियर. इसको हम नीट बाद में करेंगे. ये 2 लेयर थी, इसमें मैं एक लेयर हटा रही हूँ. मुझे लग रहा था ये 2 लेयर हैं. तो शोल्डर से मैं एक लेयर हटाकर ही यूज करूँगी.
थोड़े से हाथ इसमें चिपचिपे हो जाते हैं. The Fevicol brush that you're talking about? Ma'am, immediately you need to keep it in water, तो वो clean हो जाएगा. But it is advisable कि आप fresh brush इसमें use मत करिएगा. So dab it so that any air in this should be removed. क्योंकि अगर इसके अंदर एयर होगी तो फिर वो काम करते वक्त परेशान करेगी हमें. Yes, now Fevicol brush immediately afterwards put it in water, so your brush will come back to the normal position. जहाँ पे आपको लगे कि टेक्सचर टिश्यू पेपर का निकल गया है, you can put a piece. Just take care कि इसी से ही merge हो जाए. ऐसा ना हो कि ये अलग दिखे ऊपर से. This kneading is very necessary, otherwise क्या होगा कि if air bubble will be there, अभी तो it is wet, तो आप जो चाहे उसको कर सकते हो, but once it will get dry, तो टिश्यू पेपर उठ जाएगा वहां से जहाँ पे उसका एयर बबल रह जाएगा. तो just take care कि यहाँ पे कोई भी एयर बबल ना हो. जहाँ पे आपको लग रहा है एयर बबल्स आ रहे हैं, वहां पे इसको अभी हाथ के हाथ just press them. And it is completely optional. आप इसको बिना टेक्सचर के भी कर सकते हो, like canvas, जैसे मैंने पहले वाला किया हुआ. It is completely optional. Ma'am, 1:2 is okay, completely okay. मैंने तो थोड़ा सा ऐसे ही ले लिया था, but 1:2 is completely okay. See, this is done. If you are able to see, कहीं पर भी air नहीं है. Is it clearly visible? कहीं पर भी air नहीं है. अब there are two ways to seal the end. या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, just leave it like this, and you have the sandpaper. तो जब ये completely dry हो जाए, तो just scrub the sides with the sandpaper. और else what you can do is कि आप इसको इस तरफ से भी पूरा कवर करके सील कर दो. तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ because I'll give the touching with the sandpaper. मेरे को पीछे कवर नहीं करना है इसको because पीछे it is a cake base actually. तो ऑलरेडी वो गोल्डन है पूरा, तो I don't want to spoil that beauty. तो मैं इसको ऐसे ही I'm just leaving it.
एंड साइड बाय साइड व्हाट वी हैव टू डू इज, अब इसके ऊपर जब ये ड्राई हो जाएगा, व्हेन इट विल कंप्लीटली गेट ड्राई, देन वी हैव टू गिव अ कोट ऑफ वाइट कलर ऑन दिस. तो मैं इसको अभी देके छोड़ रही हूँ, मेरा वेट है, बट प्लीज आपका जब ड्राई हो जाएगा तब आप इसके ऊपर व्हाइट कोट देना. आई एम टेकिंग द सेम फेविकॉल वाला ब्रश. मैंने इसको बहुत अच्छी तरह क्लीन कर लिया है. एंड इट इज बेटर कि आप टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करो बाद में, क्योंकि उसमें जरा सा भी टिश्यू पेपर क्लॉथ से क्लीन करने में थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है. टिश्यू पेपर से क्लीन करने में कभी भी मॉइस्चर नहीं रहता ब्रश में. इट इज कम्प्लीटली ड्राई. अब I'll seal its end with the what do you call scrub. इसलिए मैं इसको साथ साथ कल की क्लास के लिए I'm just giving a white coat. And after the white coat, and when it will completely dry, I'll trace the Ganesh ji. The tracing I've already shared in the group. मैं इसको बहुत स्लो कर रही हूँ क्योंकि मेरा नीचे का बेस बिल्कुल गीला है अभी. Whenever you work on MDF आपको white base देना ज़रूरी होता है. It is advisable कि white coat दो, अदरवाइज आपका जो नीचे का बेस होगा वो विजिबल हो जाएगा और आपको 2 या 3 कोट्स देने पड़ेंगे अपने आर्टिकल के लिए. इफ यू आर एबल टू सी, मैं अपना ब्रश बहुत स्लो मूव कर रही हूँ. वेट होने के कारण इट इज एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ कलर. अगर ये ड्राई होगा तो ये इतना एब्जॉर्ब नहीं करेगा कलर. जस्ट बिकॉज दिस इज वेट, इट इज एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ कलर. We are done with this. I should keep it aside. Let us see if it is dried. No, it is still wet. But what we have to do is, we have this glass colors. It has green color and yellow color. But sometimes what happens that your colors get dries. जैसे मेरे भी थोड़े से हो रहे हैं. This is the green color. This is the green color. This is the yellow color. So if you will put the yellow color and the green color on this, so what will happen? It will automatically give a sheen. जैसे एक रेजन इफेक्ट हो जाता है, शाइनी इफेक्ट. लेट मी ट्राई अगर ये होता है तो. अभी तो इट इज वेट. मैं देखती हूँ अगर वर्क करता है इसके ऊपर तो.
और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, जो इसका वाइट ट्रांसपेरेंट कलर होता है, आप इसको ड्राई होने के बाद ये पूरा ट्रांसपेरेंट कलर से भी कर सकते हो। इसका जो येलो कलर है वो इसके लेमन से अलग है, तो ये आर्टिकल खराब हो जाएगा। तो आई एम यूजिंग व्हाइट कलर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर निकाल रही हूँ। आई थिंक इट विल नॉट बी विजिबल टू यू गाइस। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर का कोटिंग दे रही हूँ। मैं ज़्यादा कोटिंग नहीं दे रही हूँ। वंस इट विल गेट ड्राइड मैं पूरी कोटिंग तब दूंगी, बिकॉज अदरवाइज ना ये स्पॉइल हो जाएगा। तो आई जस्ट शोन यू कि आपको इसको एक ग्लास कलर से आपको एक कोटिंग देनी है इसके ऊपर, एंड प्रेफरेबली व्हाइट ग्लास कलर। ये देखो, इट इज द कलर इज येलो और ड्राइड, तो मेरा जो व्हाइट कलर का ग्लास कलर है वो येलो हो गया है, तो मैं इसको बाद में करूंगी। It is completely optional. If you want to give the coating of the glass color, you can give it. Otherwise, you can varnish it. It is your choice. So it's 5 o'clock. We have created the base and we have created this article. इसका ये सूखने के बाद कल मैं आपको सबसे पहले इसको ये बता दूंगी कि how we have to attach it. Then we will move forward. Thank you everyone. I really want कि कल भी इतने लोग हों. And kal we will be doing the 3D Krishna ji, and I will be showing you this article to complete. Thank you everyone for your support. We will meet tomorrow at the same time, 4 o'clock, with the new article. Bye bye.